بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد کے لیے فائنل کال دے دی ہے۔ اب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے اپنے حق کے لیے باہر نکلیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وکیل، طلبہ، کسان اور سول سوسائٹی سب کے لیے موقع ہے۔ 24 نومبر کو گھروں سے نکلیں اور اپنا مستقبل بچائیں۔ 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے فائنل کال کی تاریخ دے دی۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے۔ ایک انہوں نے کہا میں اپنے کسانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں وکیلوں کو کہتا ہوں، طلباء کو مخاطب، سوسائٹی، انہوں نے ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں آپ لوگوں کا مستقبل اس وقت بہت تاریخ ہے، ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے، ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا۔ فروری کو آپ کا سارا جو مینڈیٹ تھا وہ آپ سے چوری کر لیا، وہ دے دیا گیا گنے چنے لوگوں کو۔ فائنل اس کا رزلٹ ہے آپ نے 26ویں ترمیم میں دیکھ لیا۔ 26ویں ترمیم میں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ اب کی بار خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے واضح کر دیا۔ کہا احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ علیمہ باجی نے اعلان کر دیا ہے تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی، تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہو رہی ہے آج بہترین، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بار واپسی ہوگی کہ کرنا ہوگا؟ بھائی جان بتایا ہے پہلے سے آپ کو، تو واپسی نہیں ہے، اس وقت جاتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ تحریک انصاف کا احتجاج اتنا شدید ہوگا کہ مریم نواز یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ وہ واپس پاکستان نہ آئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف کہتے ہیں فائنل کال اور احتجاج کی نگرانی وزیر اعلیٰ کے پی خود کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کال کے بعد اب ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا۔ پرامن احتجاج کی آڑ میں شرپسندی پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ جو قانون توڑے گا اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیلائے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے خبردار کر دیا۔ ایک بیان میں کہا پی ٹی آئی کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی۔ امپائر کی انگلی، سازشی کردار، سہولت کاری بانی پی ٹی آئی کی سیاست کا قبلہ رہے۔ سیاسی زندگی ڈھیل اور ڈیل کے گرد گھومتے گزری۔ فتنے اور اس کی جماعت کو احتجاج کے خواب آ رہے ہیں۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اسموک چھائی ہوئی ہے۔ فضائی آلودگی سے لاہور، ملتان اور راولپنڈی سمیت کئی شہر پوری طرح متاثر ہیں۔ لائیو ایئر کوالٹی انڈیکس میں دہلی 515 کے ساتھ پہلے، جبکہ لاہور 432 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ راولپنڈی، ملتان، پشاور، اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہر بھی بدترین فضائی آلودگی کا شکار ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے اسموگ پر نظر رکھنے کے لیے سیٹلائٹ سے مدد حاصل کر لی ہے، جس کے ذریعے گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں، فضائی آلودگی پر سیٹلائٹ سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ جتنی بھی انڈسٹری ہیں ان کو ہم نے آن لائن اسیس ہمارے پاس ہے، ہم اس کی جو چمنی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں امیشن تو نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کو ہم سیف سٹی کے تھرو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، ہماری خود بھی ٹیمز ہیں اور سیکٹری آر ٹی اے اور ٹریفک والے بھی اس پہ ڈیلی بیسس پہ جرمانے کر رہے ہیں۔ ادھر پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف اضلاع میں اسموگ کریک ڈاؤن کے دوران متعدد مقدمات درج کر کے درجنوں افراد کو گرفتار اور ریسٹورینٹس کو سیل کر دیا گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اسموگ سے 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ 10 لاکھ بچے متاثر ہیں۔ چلڈرن اسپتال کے اسسٹنٹ پروفیسر شاہ ابن تبسم کہتے ہیں کہ زہریلی ہواؤں سے حساس بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اسپتال میں نمونیا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا بچوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے۔ فارماسسٹ شہزاد سلیم نے بتایا کہ ماسک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے شہری دمہ، کھانسی اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسموگ ہوتی ہے جب سانس کی نالی کے اندر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کو نمونیا، انفیکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بچے وہ افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس کافی زیادہ بچے آ رہے ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے رگڑوں کا مسئلہ، جسے دمے کا مسئلہ ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عام طور پہ نہ اسموگ کا ماسک لگانے کی وجہ سے نزلہ، زکام، بخار اور آل کھانسی وغیرہ۔ اسموگ سے انسان تو انسان، جانور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مویشی نمونیا، بخار اور آنکھ کی بیماری میں مبتلا۔ گائے اور بھینسوں کے دودھ کی مقدار بھی کم ہو رہی۔ ملتان سے مرزا احمد علی کی رپورٹ۔ شہر اولیاء ملتان میں اسموگ کے اثرات سے انسان ہی نہیں جانور بھی ہیں پریشان۔ بگڑتے موسم میں جانوروں کو زیادہ دیر کھلے آسمان کے نیچے نہیں باندھا جاتا۔ چھوٹے جانوروں کو اسموگ کے اثرات سے بچانے کے لیے گرم خوراک اور موسمی بیماریوں کی ویکسینیشن لازمی کروانا پڑتی ہے۔ بخار ہو جاتا ہے، یہ نڈال ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم خاص زیادہ توجہ دیتے ہیں اور گرم ہیٹ
गर्म रखने वाली चीज़ें देते हैं। नमूनिया होने का खतरा है ते थोड़ी देर वास्ते डंगर बाहर बांधने हैं, फिर असी अंदर बांध देने। स्मोक से जानवरों में भी सांस लेने में मुश्किलात, बुखार, नमूनिया और लागरपन होने का खतरा बढ़ जाता है। जानवरों को नमूनिया हो जाता है, फीवर जो है अप डाउन काफी ज्यादा होता है फॉग की वजह से। एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह हमको लगाते हैं। स्मोक से मुतासिर होने वाले जानवर दूध की मिकदार कम कर देते हैं। एहतियाती तदाबीर और कड़ी देखभाल से ही जानवरों को महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। और लाहौर में स्मोक के असरात को कम करने के लिए दरख्तों की धुलाई की जा रही है। कीमियाई मादे जमने से दरख्तों की ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत मुतासिर होती है। सिदरा गयास की रिपोर्ट। बागों के शहर लाहौर में दिन ब दिन स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल से जहां इंसान और जानवर मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं पर नबातात यानी दरख्त स्मोक से मुतासिर होते हैं या नहीं, आपको बताते हैं। स्मोक की वजह से इंसान भी इफेक्ट हो रहे हैं, हैवान भी हो रहे हैं और नबातात में दरख्त वगैरह आते हैं। फ़ज़ा में आलूदगी और कीमियाई मादों यानी स्मोक के बाइस दरख्तों पर मिट्टी अटने से इनमें ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। आप इसकी छाल को देखती हैं, आप इसके पत्तों से अखज़ कर सकती हैं। दरख्तों के ऊपर जो गर्दो गुबार होता है, जो मिट्टी वगैरह से अटे होते हैं, या ये जो स्मोक है ये जब आती है तो इसके पत्तों पर तय जम जाती है। डिप्टी डायरेक्टर बागे जिना अब्बास संधू कहते हैं कि स्मोक के मुज़रे सेहत असरात से दरख्तों को महफूज करने के लिए ट्री वॉशिंग की जा रही है। इसकी वॉशिंग करने के लिए हमने वाटर बाउजर का इस्तेमाल किया है और उस वजह से दरख्त भी फ्रेश हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मोक से दरख्त मुतासिर तो होते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी तहकीक सामने नहीं आ सकी जिससे ये साबित हो सके कि दरख्तों पर नमूदार होने वाले असरात स्मोक के बाइस हैं। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ सिदरा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। मौसमियाती तब्दीली के मसले का हल जानते हैं, वसाइल फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा कर दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरवक्त इक़दाम ना किए तो बहुत नुकसान होगा। ग्लेशियर्स पिघल कर बनने वाली मसनूई झीलों से सैलाब का शदीद खतरा है। ये भी कहा, मौसमियाती तब्दीली से 2022 में पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। COP28 में किए गए वादों पर अमल करना होगा। Without climate justice, there can be no real resilience. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement COP29 can transform into a finance COP by restoring confidence in the pledging process and scaling up climate finance. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. We know the causes, we know the solutions. Now we must find the courage to act and act swiftly. And I want at the top of my voice that the future would never forgive our inaction. मिनी बजट नहीं आएगा, पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। IMF ने हुकूमती मौक़िफ़ से इत्तेफाक कर लिया। टैक्स वसूली का तकरीबन 13,000 अरब रुपए का हदफ नहीं बढ़ाया जाएगा। आलमी मालियाती फ़ंड का हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर, अहम निकात पर इत्तेफाक कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि IMF टैक्स वसूली पर मुतमईन हो गया। टैक्स वसूली की शरह कौमी मजमूई पैदावार के 10% से ज़्यादा हो गई। पहले ये शरह सिर्फ 0.9% थी। ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली आइंदा साल शुरू होगी। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में अहम तब्दीलियों पर बातचीत होगी। परचून फरोशों ने 12 अरब रुपए टैक्स दिया। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की 10 अरब रुपए की बोली मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि SIFC के ताउन से गैर मुल्की हुकूमत को PIA फ़रोग़ करने की तजवीज़ दी गई है। PIA को कतर या अबू धाबी को फ़रोग़ किया जाएगा। कतर या अबू धाबी से 3 नवंबर तक इज़हार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की गई हैं। बेशतर टर्म एंड कंडीशंस पहले से तय है। गैर मुल्की हुकूमत को PIA के कितने हिस्से फ़रोग़ किए जाएँ, इसका फ़ैसला अभी नहीं हो सका। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बानी PTI से मुलाकात ना कराने और गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब, जेल सुपरिटेंडेंट दरख्वास्त में फरीक हैं। इसी पर मजीद जानेंगे। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी देखिए, गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई से जो जेल में मुलाकात के लिए पीटीआई रहनुमा अडयाला जेल पहुंचे थे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी और उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। उस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उमर अयूब की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब, जेल सुपरिटेंडेंट समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आरपीओ रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी और सदर बैरूनी के जो एसएचओ है उनको भी फरीक बनाया गया है। अदालत में दरख्वास्त में दायर जो की गई है उसमें कहा गया है कि अदालत के सामने जमा कराई गई यकीन दहानी पर अमल न करने पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाए। ये उमर अयूब की जानिब से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की कल और जुमे के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच कल 18 मुकदमात की समाअत करेगा। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने, मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर मुल्कों से वापस लाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली, सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत भी कल होगी। दफातर में खवातीन को हिरासत करने से मुताल्लिक मुकदमात भी कल समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मालाकंड के इलाके पलई शाहकोट में सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है हलाक दहशतगर्दों में रिजवानुल्लाह, ज़िकरिया और अब्दुल्ला शामिल हैं। वफाकी हुकूमत 2 साल के लिए इख्तियार दे, तामीरी काम करके दिखाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि तमाम शहरी मुल्क के सिपाही हैं, कलम और मोबाइल हमारे हथियार हैं। सोशल मीडिया पर हम अपने ही मुल्क पर तनकीद करते हैं, जिससे दुश्मन मुल्क हम पर हंस रहे होते हैं। वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की के लिए बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की को रोकने की कोशिश ना करें। 2 साल मुझे वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कुछ इख्तियार दे दे काम करने का, मैं यकीन दिलाता हूं कि 200 साल भी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब की सरबराही में पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल वाला नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आप इस मुल्क के सिपाही हैं और आज आपके हाथ में जो हथियार है आपका टेलीफोन है। आए अपने मुल्क को अपने हाथ से ताकतवर बनाते हैं। दुश्मन की कामयाबी देखें। आज हमारे ही पाकिस्तानी हमारे ही वतन के खिलाफ दूसरे मुल्कों में मुजाहरे करते हुए नजर आते हैं और भारत इस पर हंस रहा होता है। पहले साल में 20 करोड़, अब एक माह में 22 करोड़ रुपए जमा होते हैं। हम टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहते हैं अब कोई कहे सड़क बनानी है तो मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सितंबर के महीने की टैक्स कलेक्शन का चेक मुझे मिला। चेक था 228 मिलियन रुपए, यानी कि मेरे पास अब वो स्पेस है। यार सड़क बनानी है तो मेरे पास पैसे, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक अमाउंट था 15 करोड़ रुपए साल का और एक अमाउंट है 22 करोड़ 80 लाख रुपए महीने का। मेरा स्टाफ आपका स्टाफ होगा, मेरे वसाइल आपके वसाइल होंगे। पूरे साल में बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है। 20 करोड़ में से 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस कंपनी को दे दिए जाते थे जो कि वो पैसे कलेक्ट करती थी केएमसी के तहत। हैदराबाद की झील पार्क कॉलोनी में 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाम बहक हो गया। जाम फरीद लाखों की रिपोर्ट। लतीफाबाद के टाउन सरमस की यूसी 99 के इलाका गुलशन झील पार्क कॉलोनी में 3 साल बच्चा सुफियान मेन होल का ढक्कन न होने से गटर में गिरकर जाम बहक हो गया। पूरा मोहल्ले में हमने ढूंढा है, मिला नहीं कहीं, लेकिन 2 घंटे के बाद जब उनसे सांस निकला तो ये गटर ने इस बच्चे को ऊपर लाया। फिर बच्चों ने देखा कि ये तो बच्चा गटर में। इलाका मकीन का कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व वासा हकाम को बार बार ढक्कन लगाने का कहा, लेकिन एक न सुनी गई। पूरी झील पार्क कॉलोनी के मेन होल जिसमें सुफियान बच्चा डूब के इंतकाल हुआ है और जीसीओ जब अपनी लापरवाही करेंगे तो चेयरमैन वगैरह ये लैंड माफिया हैं। खाली ये जगह नहीं है, पूरी कॉलोनी के जो मेन हॉल है उनके तमाम गटर के जो ढकने हैं
वो सब टूटे फूटे हैं। बच्चे यहाँ तो चलो एक बच्चा फौत हो गया बेचारा, 3 साल का बच्चा था, हमारे तो आए दिन बच्चे गटर में गिर जाते हैं। गुलशन झील पार्क कॉलोनी के रहायशियों का कहना है कि सियासी चपकलश को साइड पर रखकर इलाके में गटर नालों की सफाई की जाए और मेन होल्स के ढक्कन लगाए जाए। कैमरामैन नईम शाह के साथ जामफर इलाको, ARY न्यूज, हैदराबाद। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध में अभी पूरी तरह सर्दी आई नहीं, लेकिन मौसम की सौगात मछली के दाम तकरीबन दुगने हो गए हैं। हैदराबाद से देखिए नासिर हसन खान की रिपोर्ट। सर्दियों के आगाज पर ठंड और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मछली को कुदरत का खास तोहफा समझा जाता है। तलब बढ़ते ही कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। अभी पैसे बढ़ गए मच्छी में, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, जो 600 बेच रहे थे 1000 रुपए किलो हो गई मछली। संगरा, सेरी, ये हो गई 1000 रुपए अच्छी वाली मछली। मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ न सिर्फ जायके के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं, बल्कि इनमें ग़िज़ाइयत भी अलग ही होती है। तमाम जो ग़िज़ाएं हैं, गोश्त वगैरह हो गया, मुर्गी हो गई, उन सब से जो है वो ज़्यादा बेहतर ये मछली खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। माहिरीन के मुताबिक मछली में ओमेगा 3 दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल को मतवाजन रखने में मददगार है। प्रोटीन और विटामिन डी हड्डियों और दिमाग के लिए फायदेमंद है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। इस्लामाबाद लोक विरसा के लोक मेले में सिंध के रंग भी सजे हुए हैं। लोग सिंध की सकाफती अशिया में दिलचस्पी ले रहे हैं। फातिमा बतूल की रिपोर्ट। सिंध की सकाफत अमन, मोहब्बत, मेहमान नवाजी के हवाले से अलग पहचान रखती है। इस्लामाबाद में लगे लोक विरसा मेला में सिंध की सकाफत की दिलकशी, सिंधी टोपी, अजरक, मिट्टी के बर्तन, हैदराबाद की चूड़ियाँ, सबकी तवज्जो अपनी तरफ किए हुए हैं। बच्चियाँ बड़ी पसंद करती हैं डेनिम जैकेट, उसको हमने सिंधी थरी गज होते हैं उससे हमने पैचेस लगा के इसको ज्वाइन करके एक बंजारा जैकेट बना ली। ये मेरे गाँव में अजरक बनती है, ये सालों की से अभी बड़ों के से वक्तों से ये अजरक हम बना रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी, हमारे मुल्क में ये सेल होती है ना, बेहतरीन होती है। शहरियों को सिंध की सकाफती रंग जहाँ भाए, वहीं सिंध की मेहमान नवाजी की भी खूब दाद दी। पहले मैंने कभी नहीं देखा ऐसा मेला, तो ये जो मेला है मुझे अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी कलरफुल चीज़ें हैं, कुछ ड्रेसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो आई एम लाइकिंग इट। मेले में लोक रक्स में होश मालो और धमाल के दौरान इलाकाई रक्स ने शहरियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फयाज अहमद के साथ फातिमा बतूल, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।